सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, बिना डिस्टर्बेंस के शांति का महत्व नहीं पता चलता। तो शुरू करते हैं। आज एक प्रेयर के ऊपर आर्टिकल है यतीश्वरानंद जी का, और मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत से लोगों को उसमें कोई प्रश्न नहीं मिले हैं इस बार, क्योंकि ये विषय बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसका डिस्कशन करने पे ये चीज हमको अच्छी समझ में आएगी और हम प्रार्थना भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो मैं सपना मुखर्जी से बात में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो समराइज करें। Pranam Maharaj. Place of prayer in spiritual life. We often, like a child, look upon God only as a boon giver. And if our demands are not fulfilled, we doubt his very existence. In Hinduism, God is absolute consciousness and bliss. He is beyond Maya, which is of two types. One is Vidya Maya, that is purity, detachment, love for God, and wisdom. And the other is Avidya Maya, that is delusion, cruelty, selfishness, etc. The play of Maya Shakti depends on our inherent tendencies, which exist in relation to man's soul and accumulated result of his repeated births. Man can choose either of these two and accordingly experience or execute his life. An incarnation of God only shows mankind the path of spiritual endeavor, often a new path. Spiritual life means realizing God. Of all the paths, prayer is the one which takes us nearer to God. It awakens our inherent spiritual powers. God listens to sincere prayers only. Thakur repeatedly said that God responds to those prayers which are really beneficial for us. Faith is the most important thing in prayer. We have to consider Him as our sole refuge. Common people pray out of fear or anxiety, but the spiritual person wants liberation. He resigns himself to God's will. The highest form of prayer is meditation when the mind flows to God in deep silence. We all know how Swami Vivekananda repeatedly prayed to the Divine Mother for devotion and knowledge after feeling her divinity and living presence. This is a lesson for all of us. Let us pray for devotion, strength, and purity. Prayer is the first step towards meditation. In all religions, spiritual aspirants express their innermost yearning and noblest sentiments in hymns and prayers, etc. In most cases, it is the consciousness of the limitations and imperfections, or the sense of misery and helplessness that makes the struggling souls turn to the Lord. Sri Krishna says in Bhagavad Gita that 4 types of people worship God, that is, the distressed, the seeker of knowledge, the seeker of enjoyment, and the wise. So, God is a constitutional necessity to all of us. Even the so-called agnostics also pray occasionally in their own way. The advanced seers of truth can speak from the experience of the immanent and the transcendent, with whom they associate the idea of purity and holiness. The undeveloped worshipper is far from it, but as he outgrows his primitive ideas, he knows God not only as omnipresent, but also as purifier and savior. Further, his power of introspection increases, and that is a sign of spiritual progress.
At the dawn of the inner vision, he can detect easily the evils and impurities that taint his body and mind. His torment due to his sense of sin and imperfection makes him yearn for grace and touch of God, the great purifier. There are many prayers in Rig Veda, Samhita, Upanishads, and in other scriptures, where devotees earnestly pray for purity, knowledge, and liberation. Any kind of evils and impurities is the greatest misery for the sincere seeker. So, in his distress, he turns again and again to the Lord, the Sanctifier and Savior. On the other hand, infinite merciful God also speaks to him words of hope. In Gita, the Lord asks for the surrendering to him. Though consciousness of sin and trust in divine forgiveness are certainly essential for one's spiritual development in early stage, yet these are not so important in higher Hinduism. Hindu devotee yearns more for divine love, communion, and spiritual freedom. He stressed the personal aspect of the personal impersonal. He wants to develop a personal relationship with the Lord as Father, Mother, Master, Friend, and Child, even as the eternal lover. This intense yearning for God is called bhakti. Maharaj Ji gives some examples of prayers rising from the heart of the sages like Narada, Yamunacharya, and then there is the famous prayer of Sri Chaitanya. Reverend Maharaj Ji then elaborately describes the various spiritual experiences of the souls of extraordinary spiritual caliber. A realized soul, like the greatest monist Sri Shankaracharya, sees the eternal principle in all personalities, that is, the one reality at the back of everything as in his own soul. He composed so many prayers in the different aspects. The prayers in all forms are an expression of the soul's longing for God. The forms of prayer of a bhakta and of a jnani may differ, but what is important is the intense longing for superconscious realization. Prayers should not be only for the self, it should be for all people, all beings, everywhere. It should radiate peace and goodwill in every direction. In the last section of the article, there are some prayers and meditations which Reverend Maharaj used to recite in the beginning of his classes and lectures. Pranam Maharaj. Okay, thank you. You've done a short, good one. So, shall we start the questions? Okay. Yes, Swamiji, yes. So, first of all, I'll request Subir Majumdar. Okay. Pranam Maharaj Ji. Yes. My question is, Maharaj Ji, we know that praying for devotion, knowledge and purity is one of the highest prayers. Yet, from childhood, one is conditioned to pray for something material. So much so that even the skeptic, as per page 364, top paragraph, have been known to cry out to God in despair and helplessness. So how does an aspirant who truly wants God transcend these material prayers, which tend to come naturally to him? Number one. Also, is there any prayer higher than asking for devotion, knowledge and purity? There are two questions, na? The जी first महाराज। question is, वो आपकी हैबिट हो जाती है बचपन से, हाँ है ना? जी वो महाराज। समस्या हो जाती है, तो उसकी जी। चिंता मत करो, आ जाए, उसको 1 मिनट में कर लिया, प्रभु ये दो वो दो, उसको कर देना। उसके बाद अपने इंटेंसिटी जो है प्रेयर की, वो आप ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य में लगा देना। जी। Will that be all right? हाँ, that is all right महाराज जी। In fact, जैसे हमारा क्या है कि हम बचपन से, हम तो जैन है, मैं जैन हूँ, तो बचपन से हम जो करते हैं वो अरिहंत नवकार मंत्र है जी। तो नमो अरिहंताण नमो सिद्धानम, यानी मैं अरिहंत को प्रणाम करता हूँ, सिद्ध को प्रणाम करता हूँ,
आचार्य को प्रणाम करता हूँ, उपाध्याय को प्रणाम करता हूँ और साधुओं को प्रणाम करता हूँ। यह ऐसा पंच नमस्कार सब पापों का नाश करता है, मंगलों का मंगल है, ये करते हैं बस, और कोई प्रार्थना नहीं है, जी जी नमस्कार है। जी जी और सच पूछा जाए तो आप यूनिवर्सल प्रेयर्स यतीश्वरानंद जी की किताब मेरे पास है, उसमें बहुत सारे प्रेयर्स कहे गए, वो दे आर ऑल नमस्कार। जी सो प्रेयर नीड नॉट बी कि भाई प्रार्थना करना है, ये दो वो दो, ज्ञान दो भक्ति दो भी नहीं, केवल प्रणाम। जी महाराज। So don't worry about it. Point is prayer actually becomes a feeling का जो है concentration of feeling, concentration of noble feelings, ये हो जाता है prayer। जी महाराज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आता है हैबिट से तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट, लेकिन यू हैव योर ओन प्रेयर, इंटेंसिटी की प्रेयर जो है वो ज्ञान भक्ति जो भी चाहते हो वो करो, या फिर जगत का कल्याण की प्रार्थना। महाराज ने भी बताया, आर्टिकल ने बताया कि जगत के कल्याण इसकी प्रार्थना अवश्य हमको करनी चाहिए। और जी। हमारे इसमें प्रेयर्स में तो देखा मैंने कितनी सुंदर सुंदर कविता है, वो प्रार्थनाएं हैं, वो जो है प्रसिद्ध दो प्रार्थना है। न त्वहं कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। न तो हम कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता, न सुख नहीं चाहता और पुनर्भवम भी नहीं चाहता, यानी अपुनर्भवम यानी मुक्ति भी नहीं चाहता। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम, दुख तप्त लोगों के प्राणियों के ना आरती यानी कष्ट को नाश करना, ये मैं चाहता हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रेयर, यानी मोक्ष भी नहीं चाहते। दूसरा है, एक दूसरा प्रार्थना है, कुनो न उपायो स्यात् येनाहं सर्वदेहिनाम अंतः प्रविश्य भवेयम दुख भार भार। तो कौन सा उपाय है कि जिसके माध्यम से मैं संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में बैठकर उनके दुखों को स्वयं सहन करूं। और फिर दूसरा वो तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जानते हैं जो पांच कवि वो हैं, सभी सर्व संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सबको किसी को दुख नहीं होवे, कोई माँ कष्टित दुख भाग भवे। और उसके बाद में वही है, सर्वस्तर तो सर्गानि, सब सर्व दुखों को नष्ट प्राप्त हो जाए। दुर्जन जो है वो सज्जन होवे, सज्जन जो है वो मुक्त होवे और मुक्त दूसरों को मुक्त करे। इतने सुंदर सुंदर ये है, इसमें भगवान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल केवल प्रार्थना। तो यू सिलेक्ट एनीथिंग, पुरानी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, वो होगा सो होगा, वो आदत बन गई है, क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन ये नई प्रार्थना की आदत करो तो वो हमेशा होती रहेगी। हम जाते हैं तो हमारी एक आदत हो गई है, ठाकुर को प्रणाम करने जाते हैं तो एक डेफिनेट आदत हो गई है। पहले तो प्रणाम करते हैं तो कहते हैं प्रभु मन बुद्धि प्राण से जो कुछ मैंने आज तक किया सब आपको समर्पण, एक समर्पण का हुआ। उसके बाद में है हमारी प्रार्थना कि शरीर मन प्राण से जो भी मैं करता हूँ प्रभु वो आपको देता हूँ। और क्या है, एक मैंने कहीं एक प्रबुद्ध भारत में एक पढ़ी थी, ओ लॉर्ड गिव मी दिस, प्रभु ये मुझे ये दिन दो कि जिस दिन मैं मन प्राण से आपकी पूजा, क्या है, ओ लॉर्ड गिव मी दिस डे टू सर्व दी better and love thee more. Let me not look forward to the Maya's mirage of tomorrow, nor yet turn backwards to the triumphs and disasters of past. Rather let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. उसमें यह है कि मैं भविष्य का चिंतन न करूं, भूतकाल की चिंता न करूं, क्या किया अच्छा किया बुरा किया। आज का दिन मुझे दीजिए कि मन प्राण इंद्रियों से मैं केवल आपका चिंतन करूं, और उसी प्रकार जब रात को सोऊं तो मैं शांति से सो सकूं, इस प्रकार की प्रार्थना। तो इट डिपेंड्स अपॉन, जो भी आपको प्रार्थना अच्छी लगे उसको ले लिया, और ग्रेजुअली इफ यू गेट इनटू अ हैबिट देन ओल्ड हैबिट था, डोंट वरी अबाउट दैट, ये नई हैबिट बन जाए। Actually we have to prepare new habits, old habits take long time to go। यानी वर्बल हैबिट होवे, प्रार्थना की हैबिट है, खाने पीने की हैबिट है, सभी में टाइम लगता है। ठीक है जी महाराज जी। अच्छा, तो मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था महाराज जी कि
जब से आपके लेक्चर्स वगैरह सुना है, आपसे बात भी की है, तो ये जो मटेरियल प्रेयर्स है ये खुद ब खुद मेरे कम हो गए, क्योंकि आपसे बात करने के बाद मेरे को ये फीलिंग हुआ कि मटेरियल प्रेयर्स एक हीन भाव है, अपने लिए कुछ मांगना उस तरह से। तो मेरी आदत पड़ गई है कि मैं मटेरियल प्रेयर्स करता ही नहीं हूँ। बाई चांस कभी आ जाता है तो मैं मन से हटा देता हूँ। दैट इज बिकम ए प्रैक्टिस सिंस आई हैव कम इन कांटेक्ट विद। उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं उसकी, डोंट वरी अबाउट। सेकंड क्वेश्चन महाराज, ये मैंने पूछा था कि इज देयर एनीथिंग, एनी प्रेयर हायर देन डिवोशन, नॉलेज, प्योरिटी? एक्चुअली डिवोशन हायर, सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या है एक्चुअली इट इज द इंटेंसिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो डिपेंड्स अपॉन सो मेनी, जैसे मैंने कहा कि ये व्हाट कैन बी हायर देन दिस, कि प्रभु मुझे जन्म जन्मांतर नरक में जाना पड़े, मैं लोगों का कल्याण करूं। चैतन्य महाप्रभु की है ना जीवन, ये यही तो प्रभु क्या है कि यही तो हो गया कि मेरे को जन्म जन्मांतर तक नरक में घूमना पड़े लेकिन लोगों का कल्याण हो। वो है ना क्या है वो शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, उसमें ये है, को नून उपायोत्र ये नाम सर्वदेहिनाम अंतः प्रविश्य भवेयम दुख भार भाग्य। चैतन्य महाप्रभु का ही है, लोगों के दुख हृदय में बैठ के मैं लोगों के दुखों को सहन करूं, उससे अच्छा क्या होगा। और भी है वो चैतन्य महाप्रभु का वो शिक्षाष्टकम बहुत अच्छा है, वो प्रार्थना ही नहीं, 6 की 6 प्रार्थना है। तो देख लो, यूनिवर्सल प्रेयर किताब है, तुमको बहुत सारी प्रार्थनाएं मिल जाएंगे। यू फाइंड आउट योरसेल्फ व्हाट यू कंसीडर। जी महाराज, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज महाराज, महाराज मैं एक बोलना चाहती हूँ, असतोमा सदगमय, ये भी तो हाईएस्ट प्रेयर है तो प्रार्थना है। हाँ। असतोमा सदगमय, जो तुमको अच्छा लगा ले लो, असत से सत की ओर ले जाओ, अज्ञान से ज्ञान की ले जाओ, मृत्यु से प्रकाश की ले जाओ। महाराज एक क्वेश्चन और था महाराज। इन ए ज्ञानी, इज इट एन इंटेंस लॉन्गिंग टू बी वन विद ब्रह्मन without any love involved, because he only loves the intellectual process in attaining Brahman? And if he does have love for God or whatever, how does he express it all as he is saying neti neti, almost as if denying even the existence of God? After all, even Swamiji and brother monks went through that phase in Kashipur and Baranagar, where they refused to acknowledge God. In Swami Chaitananda's compilation, it is written, Sri Ramakrishna as we saw him. ऐसा है, जी महाराज। You know, I will ask you a question. What do you mean by love? अब लव की बात कर रहे हैं, प्रेम है क्या? What is love? एक भावना। Very difficult to define. हाँ महाराज, तो फिर प्रेमानंद जी ने लव की बात कर रहे हैं उसके अंदर। जी हाँ, स्वामी प्रेमानंद जी ने बताया था कि आप लोग सब प्रेम की बात करते हैं लेकिन आप जानते नहीं है प्रेम क्या है। प्रेम सिर काट के दे दो, सिर काट के दे दो। हाँ, और जगदानंद जी ने कहा था, व्हाट इज लव इफ नॉट सेक्स? यानी काम ही है, लव है तो सेक्स ही है, अधिक समझते हैं ना। उन्होंने कहा लव इज शुभेच्छा। यदि किसी को प्यार करते हो तो उसके प्रति शुभेच्छा, उसका कल्याण होवे, यही लव है जी। और यहाँ पर जब ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञानी में भी जिसको आप भावना जिसे कहने भावना, तो भावना क्या होगा? इंटेंसिटी। ज्ञानी में अगर वो नेति है, कितनी इंटेंसिटी से कर रहा है, दैट इंटेंसिटी इज लव। ओके, ठीक है। ठाकुर बोल रहे हैं कि एक दिन भी चला गया, दर्शन नहीं हुआ। और अपने तोतापुरी से वो कह रहे हैं कि मैं कर नहीं सकता, माँ जगदम्बा आ जाती है। तोतापुरी ने यहाँ पे वो कहा, इस पे ध्यान करो इंटेंसली। ठाकुर ने अपना सारा भाव लगा दिया, अब वो वहां क्या विचार लगाया?
विचार तो ऑलरेडी है, उस विचार पर पूरा मन लगा दिया, इंटेंसिटी लगा दी, तीव्रता लगा दी, व्याकुलता लगा दी, और वो भाव जो है वो अभिव्यक्त हो। बाकी नेति नेति करते रहो ना, विचार करते रहो, कुछ नहीं होता। जी जी महाराज एक बात पूछूं? उसको विचार को पूरी तरह पकड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। बोलो। लव, जब हम ईश्वर के बारे में बोलते हैं, लव क्या इस ये मीनिंग हो सकता है क्या, अभाव बोध? मतलब यानी फीलिंग ऑफ, अभाव। दैट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट। फीलिंग ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस। यानी हमें अभाव प्रतीत हो रहा है भगवान का। दैट्स अ गुड आइडिया। When you feeling absence of something, that is a sort of love. That is also a good way of expressing it. ठीक है? महाराज बच्चों के बारे में तो हम अभाव फील करते हैं जब वो पास में नहीं रहता है, तो लेकिन ईश्वर के बारे में तो वो अभाव बोध हमारे में कहाँ है? वो तो यदि होवे बहुत तो कम। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ That's the वही। point. हाँ That's the point. जब तक, इसीलिए तो भगवान को प्रेम करना कठिन इसीलिए तो है, जी जी बिकॉज हम फील ही नहीं करते उनका एब्सेंस। जी। जब हम उस एब्सेंस फीलिंग करेंगे तब प्रेम हो जाएगा। That will become a ओके। जी दिलीप महाराज भाई, जी दिलीप महाराज शाह। प्रणाम। महाराज एक मैं वो सुबीर मजुमदार के जो एक है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे शंकराचार्य तो सबसे बड़े ज्ञानी है, पर उनके जो स्तोत्र है पूरे भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण है, उनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ ये तो है नहीं, लेकिन ऐसा है कि वो तो भक्ति तो थे ही, बेसिकली भक्त भी थे। हाँ हाँ हाँ, उनको पर ज्ञानी एक भी तो थे। एक विशेष वेदांत को प्रतिष्ठा करने के लिए ज्ञान का बहुत बड़ा आश्रय लेना पड़ा था। आश्चर्य। ये बात है। दोनों था उनका, दोनों भक्ति था। दोनों। उन्होंने तो काफी मठ वगैरह भी तैयार किया इसलिए। हाँ हाँ हाँ। दिलीप भाई, दिलीप शाह। जी हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। महाराज जी पहले मैं ये पूछ रहा था इसे कंटिन्यूएशन में कि बिना भाव के कभी प्रार्थना हो सकती है क्या? हाँ बिना भाव के प्रार्थना कैसे होगी? भाव तो सबसे नहीं, पहले ये तो प्रश्न तुमने पहले, तुम्हारे दूसरे प्रश्न, बिना भाव के हाँ, प्रार्थना कैसे प्रार्थना करेंगे? हो नहीं हो सकती। बिना भाव के प्रार्थना कैसे होगी? यदि साधना। हाँ, प्रार्थना प्रेयर कैसे करेंगे बिना भाव के? अब प्रश्न ये है कि आप बताइए भाव का क्या मतलब। यानी ईश्वर के अभी हमने डिस्कस किया, प्रेम की बात तो इतनी हो गई, हाँ प्रेम की बात इतनी हो गई। प्रेम अभी हुआ ना, कोई समझते नहीं है हम प्रेम को। बड़ा से प्रेम क्या है, शुभेच्छा होती है। सिर काटो और बदलान दो, ये हुआ प्रेम, ये प्रेम हुआ। अब भाव को एक्सप्लेन करिए। भाव यानी क्या? संबंध मेरी बनाना। इच्छा, मेरा झुकाव, मन का झुकाव। तो मन का झुकाव होगा तभी तो साधना होगी। अच्छा, और महाराज जब हम मेरी फीलिंग, अब इंग्लिश में वर्ड बढ़ दिया मैंने, साधना के बदले इंग्लिश वर्ड कर दिया मैंने, फीलिंग। जी अब भावनाओं को समझना मुश्किल है। मेरा भाव क्या है, मेरा विचार क्या है, कई बातें आ जाती हैं। तो ये प्रश्न जो है भाव कठिन है समझाना। तो जब तक नहीं समझाओगे तो उसके साथ फिर साधना से क्या होगा। और दूसरी बात है कि इसको, प्रश्न का फिर महत्व क्या है, यानी एक्चुअली प्रैक्टिकल महत्व भी तो होना चाहिए ना। केवल थ्योरेटिकल प्रश्न करने से तो कोई महत्व होगा नहीं। नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि जैसे हम प्रेयर करते हैं, महादेव जी को शंभु दया करो, शिव दर्शन दो, हमारे कष्ट दूर करो, तुम्हारे चरण पकड़कर मांगू तुम दर्शन दो, मेरा मन तेरे में लगा रहे ऐसी शक्ति दो, पूरे संसार में तुम विराजित हो, दया। अरे ए भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, पास में लेकर सुना, बोलो। महाराज जी जैसे एक प्रेयर है, ये आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं, आवाज तुम्हारा माइक पास में ले ना। मैंने तो माइक पे ही हूँ मैं। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब आया थोड़ा सा। महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे शिव जी की प्रार्थना की कि शंभु दया करो, शिव दर्शन दो, हमारे कष्ट दूर करो,
तुम्हारे चरण पकड़ कर मांगू तुम दर्शन दो, मेरा मन तेरे में लगा रहे हाँ। इसकी शक्ति दो, पूरे संसार नहीं नहीं, ये में तो हुई तुम- प्रार्थना। प्रश्न क्या है तुम्हारा? नहीं तो ये मेरा ये है कि ये एक भाव दिल में रहता है, क्या इसको भाव कहेंगे हम कि इस भाव से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, या क्या हाँ, ये कहें? तो है ही। भाव जी। यानी इमोशन। इमोशन अच्छा, मैं एक जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे फीलिंग होती है, भावना होती है, इंटेंसिटी होती है, प्रेम होता है, इसी को भाव बोलते हैं। अब इस अच्छा। भाव को तो समझने की चीज है, उसको भाषा में समझाया नहीं जा सकता। जी, वन हैज टू एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, अब अनुभव करना है ये तो। जी, यस, इसको मैं भाषा में क्या समझाऊंगा इसको? जी जी जी। तो हम इस प्रकार की जब प्रेयर करते हैं, तीव्रता बोलो। हमने प्रार्थना की हाँ, लेकिन पीछे भाव नहीं है, हमने बोल दिया, जीभ से बोल दिया, लेकिन पीछे भाव नहीं है उसके, यानी जी। इंटेंसिटी नहीं, तीव्रता नहीं है, इच्छा जी। नहीं है। ये सारे के सारे अलग अलग शब्द हैं भावना के लिए। अच्छा, बराबर जी महाराज, राइट अब उसको कैसे समझाएंगे? जी। तो अब महाराज मेरा सवाल शुरू है। नंबर 1, God was perfect purity, the source of all good, and that matter was the source of evil. It means the world is evil because the matter is in the world. In Zoroastrianism, evil is personified in Satan, while Christian view Christ projected in Maya. Christ overcome evil, but in Hinduism, God is beyond good and evil. Here, evil is projected in Maya, but Maya is created by God. I am not clear, please explain. अरे जगत की सृष्टि तो होनी है ना, हाँ कि नहीं होना? जी, भगवान है, अब जगत को बनाना है। अब कौन बनाएगा? कोई ना कोई तो बनाना पड़ेगा ना। जी, कोई क्रिएटर तो होना चाहिए। एक घड़ है, घटा है, घट है, हाँ, एक मटका है, तो मटका बनाने वाला है कुम्हार तो होना चाहिए ना। जी। तो किसने बनाया? ये संसार को, जगत को भगवान ने बनाया। तो एक मिनट मानते हो महाराज कि जी। नहीं भगवान ने बनाया? नहीं, एक मिनट महाराज, एक सेकंड। यहाँ लिखा है, पहला ही सेंटेंस है, गॉड वाज परफेक्ट प्योरिटी, द सोर्स ऑफ ऑल गुड, एंड दैट मैटर वाज द सोर्स ऑफ इविल। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या फिर? ये वी विल बी। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, जी, उसके बाद में क्या कहा है कि भगवान ने ये जो किया है वो माया से किया ना। हाँ, ये किया, हाँ, तो जगत जो है ये अच्छा बुरा दोनों मिला हुआ होने से तभी भगवान जगत बनेगा। बुरा जी, नहीं होगा तो जगत नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा ही अच्छे से जगत नहीं बनेगा। जी, रात को नींद आएगी, हमको भूख लगेगी, समझे, सिर दर्द होगा, ये तब तो जगत चलेगा। मैं पहले दूसरे वाले आदमी से आगे बढ़ जाऊं, ये सारी बात होगी तभी तो सृष्टि होगी। यस, मतलब बुरा और अच्छा दोनों को मिलाए बिना सृष्टि नहीं हो सकती। अब ये जगत सृष्टि, ये बुरा कहाँ से आया? भगवान से ही आया होगा, क्योंकि पहले तो भगवान ने ही सब बनाया ना। जी, जी, तो इसलिए कहा भगवान ने अपनी माया से बनाया। माया उनकी शक्ति है, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। जी, विद्या माया, विद्या माया बोला ना स्वामी जी ने, ये आर्टिकल में है ना, डिटेल में कहा। जी, विद्या माया, अविद्या माया, ये सब भगवान ने बनाई। ठीक है जी, बराबर। अच्छा, अपनी हिंदुइज्म की थिंकिंग में और क्रिश्चियन थिंकिंग में और जोरास्ट्रियन थिंकिंग में फर्क है क्या? अरे भाई बहुत फर्क है। उसका फर्क होगा नहीं? नहीं तो वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते हैं 5 बार नमाज। नहीं, वो ये उर्दू बोलते हैं, हम उर्दू नहीं बोलते हैं। नहीं महाराज, ये फर्क क्या, सब फर्क नहीं होगा क्या? नहीं, फर्क सब धर्मों में फर्क है। नहीं, फर्क ये है कि क्रिश्चियन व्यू इज क्राइस्ट ओवरकम इविल। अरे भाई ये हम देखो, ये प्रश्न का आवश्यकता क्या है? यार उनके मत जो है वो भिन्न है, और इस आर्टिकल में मत को नहीं किया गया। जी, वहाँ केवल कहा गया है कि उनका ये मत है, ये मुसलमान ये मानते हैं, ये मानते हैं, बस। तो भिन्न लोग मत हैं। जी, अब आप कहेंगे कि भाई वो ब्रह्मेशानंद जी लाल कपड़ा पहनते हैं, मैं हरा कपड़ा नीला पड़ता पहनता हूँ, ये दोनों अंतर है क्या? अरे अंतर तो हो गई।
ये क्या प्रश्न है? महाराज ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, इनकारनेशन ऑफ गॉड शोज मैनकाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल एंडेवर ऑफन ए न्यू पाथ। ये न्यू पाथ क्या चीज है? नया मार्ग, मार्ग पाथ यानी कोई धर्म ने मार्ग, मार्ग रास्ता, हाँ जी, हाँ, नया साधना की पद्धति। यानी ये नया धर्म या नया ईश्वर, क्या कहेंगे इसको? हाँ, तो यह स्वामी श्री रामकृष्ण जब आए तो एक नया मार्ग क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने कहा शिव ज्ञान से जीव सेवा करो। उन्होंने कहा है कि सर्व धर्म सत्य है, कोई धर्म विरोधी नहीं है, सबको स्वीकार करो। जी, ये उनका नया मार्ग हो गया। उन्होंने ये नई चीज बनाई, जो पहले थी उसमें से उन्होंने थोड़ा सा बदल के और एक नई चीज हमको दी है। अब यहाँ पे आओ तो पता लगता है, अरे हाँ हम आ गए, यहाँ पता चलता है कि हिंदू धर्म जो एक प्रकार का था, ये रामकृष्ण धर्म दूसरे प्रकार का है। अब ईसाई धर्म जो पढ़ेंगे तो ईसाई में आपको नई चीज मिलेगी, इस्लाम में नई चीज मिलेगी। तो ये बीच बीच में ऐसे महापुरुष आते हैं 100-200 साल में, और ये नया मार्ग बताते हैं जो साधना के लिए, इस जन्म के, इस अपने धर्म, इस युग के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। राइट, ठीक है जी जी महाराज जी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गॉड गिव्स अस व्हाट इज गुड फॉर अस एंड ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस एंड ही इज आवर गॉड and we are his children, then why he waits for a prayer from his children for giving something? अच्छा, माँ तो खाना देती है, माँ तो खाना देगी जी, लेकिन बच्चा फिर भी कहता है माँ माँ मैं, मेरे को लड्डू दो। नहीं मानना, मांगना नहीं चाहिए क्या बच्चों को? बोलो, रोज मांगता है बच्चा, माँ तो है, माँ तो देगी उसको, लेकिन फिर भी मांगता है कि नहीं मांगता है? ये बताओ। अच्छा, बच्चा मांगे कि नहीं मांगे माँ से? तुम बोल दो कि मत मांगना, माँ तो दे ही रही है, कि मांगता क्यों है? अब बच्ची माँ ही बोर हो जाएगी कि बच्चा मांगता क्यों नहीं। yes, तो फिर तो अगर आदमी भगवान से मांगना छोड़ देवे तो फिर भगवान के साथ संबंध ही नहीं रहेगा। माँ से मांगना छोड़ देवे तो माँ से क्या संबंध रहेगा बच्चे का? बच्चे का कोई संबंध नहीं रहेगा, माँ देगी बस, ठीक है, खत्म हुई बात। समझ में आई कि नहीं बात? नहीं महाराज जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो हमारा ईश्वर से संबंध के लिए जरूरी है हमारे जी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन, अरे ईश्वर तो है, उन्होंने बनाया है, वो आपकी रक्षा करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली है जी, इसलिए साधु लोग जो है साधु बन जाते हैं तो क्या है, चिंता ही नहीं है कुछ भी। यहाँ तक है कि वो तो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगने भी नहीं जाऊंगा। ऐसे मुसलमान सूफी संत हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमको बनाया, हम नहीं जाएंगे भिक्षा मांग, और उनको सब मिल जाता है, घर पे आके मिल जाता है। तो अब तुम प्रार्थना मत करो ना, तो कोई हम भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर भी मिलेगा। तुम्हारा ही नुकसान होगा कि तुम चाहते हो वो नहीं मिला तुमको। हमने मांगना पड़ता है ये नेक्स्ट। अब तुम जानो बाबा, प्रार्थना करना चाहो कि नहीं करना चाहते हो। Yes, my next question. Here in this article, in अब देखो, सुनो इसमें तुमको ये बता दूं हाँ महाराज जी, कि भगवान से जैसे मैंने कहा माता पिता से मांगते हैं वैसे ही, हाँ, उससे भगवान जो है वो गुस्सा नहीं हो जाते। जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कोई प्रार्थना नहीं है जी। तो वो क्या जैनिज्म में क्या प्रार्थना है? नौकार मंत्र है बस, हाँ, नौकर मंत्र। पर पूरे जैनिज्म में प्रार्थना नहीं है। बोलो, और तो भगवान को ही नहीं मानते हैं तो प्रार्थना क्या करेंगे? लेकिन है क्या,
सर्वे महाराज भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, जी सर्वे संतु निरामया, संसार के प्राणियों के लिए प्रार्थना करो ना बाबा, जी इसमें क्या बुराई है आपको? जी बुद्धिज्म, जैनिज्म ये है सर्व संसार के समस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना करो, भगवान को हटा दिया। जी अच्छा, तुम्हारा अब ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तुमका दिमाग खराब हो जाएगा। जी महाराज, मेरा नेक्स्ट सवाल खराब हो ही गया। भगवान चला जाएगा तो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। जी महाराज, my चलो। next question. Here in this article is all the prayer as aspirants always demanding from God. Don't give me this, don't give me this, give me this, give me this. Again and again they say. What we understand that an aspirant should not demand anything from God. He has to do sadhana through jap and swadhyay, karma without any ambition. ये तो हो तो गया, बिना प्रार्थना भी काम चलता है। अब तुम मत करो ना, तुमको क्या, तुमको अगर अच्छा नहीं लगता है कि भगवान से प्रार्थना करो तो मत करो, नहीं और ध्यान से करते रहो। जी लेकिन बात यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान के निकट जाते हैं, ये नहीं समझते। जी जब व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं तो हमारा भगवान के साथ में संबंध हो जाता है। ये भी एक साधना का अंग है भाई, प्रार्थना भी साधना का अंग है। जी जी। महाराज, यहाँ एक आधी स्टोरी एक मोहम्मदन गर्ल की थी। हाँ? एक लड़की की स्टोरी थी, उनका पेरेंट्स ने उसको कहा था कि ये मांगो वो मांगो। वो लड़की कुछ मांगती थी तो पिताजी ने कहा था कि तुम भगवान, किसने कहा था? पेरेंट्स ने लड़की को ये कहा कि तुम भगवान से मांगो, जो मांगना भगवान जरूर देगा। हाँ 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 हाँ, तो वो रोज हाँ, हाँ। मांगती थी और रोज वो पेरेंट्स दे देते थे। हाँ हाँ। जी और उसके बाद में क्या हुआ? हाँ उसके मन में विश्वास हो गया कि भगवान देते हैं। एक दिन पेरेंट नहीं थे जी और उसने मांगा तो चीज मिल गई। मतलब उसने पक्का विश्वास हो गया था कि भगवान देते हैं। ये मुसलमान कहानी है, उसमें वो लोग ऊपर से गिरा देते थे जो चाहता था बच्चा, तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि भगवान देते हैं। उसके बाद एक दिन नहीं थे घर पे, वो देखा उसने कि बड़ा प्रार्थना की और वो मिल गया था उसको। तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि विश्वास पे ही हम जिंदा रह सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमें विश्वास अधिक प्राप्त होता है जिंदा रहने के लिए। देखो, ऐसा है कि साधना के द्वारा करता, आपको प्रार्थना नहीं करना तो मत करो ना, किसने मना किया? जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रार्थना से भगवान के निकट जाया जा सकता है। एक प्रेम का भाव हो सकता है उनके साथ। जी बराबर। बस हो गए? हाँ, हो गए। और महाराज, अच्छा सतीश, वो बाद वाले 3 क्वेश्चन बाद में लेंगे। ओके, राइट। बाद में जो प्रश्न पूछे बाद में लेंगे। जी 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 जी। सतीश बेग। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ बोलो। Maharaj, my first question, how can we love the formless God, infinite, who has no human form? हाँ? How अच्छा, can we, how No, do we ऐसा love है। the infinite, the formless God who has no human forms? अच्छा देखिए, ऐसा है कि गॉड के 3 कंसेप्ट हैं। एक तो है निर्गुण निराकार। निर्गुण भी है, उसमें गुण भी नहीं है, आकाश की तरह है, उसको प्यार नहीं कर सकते। दूसरा कंसेप्ट है निराकार है, आकार नहीं है, लेकिन बहुत सारे सद्गुण हैं। वो प्रेममय है, दयामय है, वो मेरा पिता है, मेरा माता है, लेकिन निराकार है। जी। निराकार होते हुए भी माता पिता है, जगत में सब तरफ व्याप्त है, ये कंसेप्ट है। और तीसरा कंसेप्ट है सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार से भी प्रार्थना की जा सकती है, प्रेम किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे को कहो कि भगवान निर्गुण निराकार है, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान को अगर एक पत्थर की मूर्ति दे दो, फोटो दे दो, तो समझ में आएगा।
तो हम लोगों का मन भी जो है अभी जो है वो इस प्रकार का है, अनडेवलप्ड, एंड दिस बिकॉज ऑफ द अनडेवलप्ड माइंड वी आर नॉट एबल टू, हम केवल सगुण साकार को ही चाहते हैं, दूसरे की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे ईसाई है, मुसलमान है, वो सगुण साकार रूप वाले को नहीं मानेंगे, जी वो महाराज, निर्गुण को मानेंगे। बिल्कुल। हाँ, और प्रेम करेंगे। जी जी यानी ऐसे ऐसे अद्भुत भक्त हो गए हैं, सूफी संत हो गए हैं, अपने भगवान के लिए सब कुछ अर्पित कर देते हैं, ऐसे प्रेमी। और भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, निराकार होते हुए भी। जी महाराज, ईसाई धर्म में ऑल्सो निराकार है भगवान। ईसाई धर्म में तो ईसा मसीह एक उनके प्रॉफिट हैं, लेकिन मुसलमानों में तो मोहम्मद की भी मूर्ति नहीं है। जी तो बिल्कुल निराकार होते हुए भी प्रेम करते हैं। हाउ मत पूछो, जी जी। हम नहीं कर पाते इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं कर पाएंगे, याद रखो। नहीं महाराज, मेरा कहने का क्वेश्चन ये था कि ये सच्चिदानंद कॉन्सेप्ट हो जाता है, भगवान का कॉन्सेप्ट है, उसके फॉर्म तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो है। भगवान का फॉर्म हाँ, नहीं तो है, concept- कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम प्यार कर सकते हैं। सच्चिदानंद, ठीक है, तो सच्चिदानंद, वही तो हुआ, वही वही तो हुआ। वही तो। हम भी वैसा ही अपने आप को सोचते हैं कि हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है, पर ऊपर भगवान निर्भर करता है, तुम चाहते हो, साकार चाहते हो या कॉन्शियसनेस चाहते हो, डिसाइड करो। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, हो गया क्वेश्चन महाराज। हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है शायद, कि वो प्रेयर ऑफ द ज्ञानी इन पेज नंबर 373, his deep silence is itself a great inner prayer. His deep silence is itself a great inner prayer. प्रेयर नहीं करता ज्ञानी, लेकिन उसकी जो साइलेंस है, डीप साइलेंस, is itself a great inner prayer. 373। क्या है, क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि वो उनके जो ज्ञानी है उसकी प्रेयर जो है वो साइलेंट प्रेयर, ये है ना प्रश्न? जी महाराज, जी जी। एक्चुअली ये है, मेडिटेशन हो जाता है। यस यस। अगर गहरा प्रार्थना होगी तो वो मेडिटेशन बन जाएगी, और फिर वो मुंह से नहीं बात होगी, वो मन ही मन होगी। वहां पर फिर वाणी नहीं है, मन ही मन है, मन भगवान में लगा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कम्युनियन विद गॉड, कम्युनियन हो जाता है गॉड के साथ। कम्युनियन यानी तो यूनियन हुआ, तो इतना प्रगाढ़ हुआ, प्रार्थना इतनी तीव्रता से हुई। हम प्रार्थना करते हैं तो सामने बैठते हैं ना भगवान के, अपनी मूर्ति के पास में बैठे, हमने प्रार्थना की तो हम दो अलग हैं, और लेकिन गहराई जब हो जाएगी तो हम दो एक सो जाएंगे। जैसे माँ और बच्चा, तो माँ और बच्चा दोनों अलग हैं क्या? दिखते अलग हैं लेकिन मन ही मन तो एक ही है ना। उसी प्रकार की बात, जब भगवान गहरी प्रार्थना होगी तो उनके साथ में यूनियन हो जाएगी। मन की बात अपने आप ही भगवान, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन की बात अपने आप ही भगवान के पास पहुंचेगी। अब ये हो तब ना, तुमको खुद ही होना चाहिए, तब तो मजा आएगा, ऐसे कैसे होगा? जी महाराज, हाँ जी जी महाराज, ऐसा होना चाहिए। एक बार करो और हमको बताओ, तब तो मजा आएगा। इतनी गहराई होनी चाहिए महाराज। डेप्थ होनी चाहिए। जी महाराज, निवेदिता। हाँ जी महाराज। हाँ। मेरा पहला जो प्रश्न है वो, हाउ टू फील द रैप्चर ऑफ एक्सटैटिक लव फॉर गॉड while doing prayer. After few days our prayer becomes mechanical. How to prevent that? अरे in the beginning also we are mechanically है, हाँ, कोई ये प्रेयर मैकेनिकल हो जाता है। लव नहीं होता। हाँ, ये लव सारा जो है ना, ये हाँ। पति में चला गया, पुत्र में चला गया, संसार में चला गया, आप कहाँ बचा है लव? ये नहीं सोचते हो? It is not easy to talk about rapture of love. ये only saints में होता है। We don't have any love for God. Yeah, remember. यानी कहते हैं ना बार बार कि पति की तरह, पत्नी की तरह, पुत्र की तरह, संतान की तरह भगवान को प्यार भगवान करो। को प्यार करते हैं करो। क्या? वो फोटो हुआ, जरा अगरबत्ती जला दिया, 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, बस खत्म। तुम्हें भी कोई रैप वो भाव नहीं होता, एंड में भी भाव नहीं होता। पर इस प्रेयर का कुछ असर तो होता है महाराज।
हाँ? जैसे ये मैकेनिकल प्रेयर होते रहता, कई लोग करते हैं ना रोज वही प्रेयर को करना, तो इसका इफेक्ट तो तो जरूर होता है। वही करते रहते हैं, वही बने रहते हैं। हाँ, वो यही है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए संसार का चिंतन नहीं किया, बस, और कुछ नहीं, हाँ, और कुछ नहीं होता। सेकेंड प्रश्न, तो दूसरा जो प्रश्न है उसका आपने आंसर दे दिया है, व्हाट इज द डीप एंड साइलेंट प्रेयर ऑफ ज्ञानी। थर्ड मेरा प्रश्न है, कैन इट बी पॉसिबल टू डू बोथ साकार एंड निराकार प्रेयर टुगेदर, मैंने एक साथ ही कर सकते हैं? साकार निराकार प्रेयर क्या मतलब? ज्ञानी और भक्त के प्रेयर जो होते हैं ना वो। अभी तो डिस्कस हो गया डिटेल में। हाँ, ज्ञानी और भक्त का हो गया ना। प्रेयर साकार निराकार नहीं होती। भगवान को अगर तुम निराकार भगवान प्रार्थना करो तो भी निराकार है, साकार है, प्रार्थना तो एक ही होगी। तो निराकार जो है, तो जैन लोग, मुसलमान लोग और ईसाई लोग तो निराकारी होते हैं ना। तो प्रार्थना करते हैं खूब। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न। इतु घोष, इतु जी प्रणाम महाराज जी। जी मेरा पहला प्रश्न है, हु फ्रॉम द टेक्स्ट, हु ड्वेल्स इन द सीनलेस हार्ट। तो इसका वी नो गॉड ड्वेल इन एवरी हार्ट, देन हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस? God is not in every heart. God in everything. Yes. ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है उसके सब में तो भगवान है ना जी। तो फिर वो हार्ट में रहे या प्योर हार्ट में लगे, तुम तो ये कह सकते हो कि भगवान तो सब जगह है, फिर प्योर हार्ट की क्या बात? अरे मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट, भगवान का हमारा पवित्र हृदय बनेगा तब वहां पर अधिक प्रकाश होगा। यूं तो हमारे सामने टेबल है, उसमें भी भगवान है जी, हमारे हाथ में भी भगवान है जी। इस भाव से कहा है कि हम हृदय में बोलते हैं इसलिए कि वहां पर भावनाएं होती हैं, इसलिए। और जब हृदय में प्रेम की भावना होगी भगवान पर, हृदय जब शुद्ध होगा तब भगवान वहां पर प्रकट होंगे। उसके बिना रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें प्रकट नहीं हो। सब जगह है भगवान तो जी। लेकिन बड़े संतों के संत जो लोग हैं वो पत्थर में भी देख लेते हैं, कुर्सी में भी देख लेते हैं भगवान, हम नहीं देख पाते। क्यों? प्रार्थना के द्वारा, पवित्र होने के द्वारा उनका मन जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इसलिए वो देख जी। जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, evil and impurity in any form cause the greatest misery to the हेलो महाराज सुन रहे हैं? हाँ सुना मैंने, क्या है? Evil and impurity in any form cause the greatest misery to the sincere seeker as they stand in the way of his union with the divine. This is from the text. Now मेरा क्वेश्चन है कि in case of sincere seeker, what will be taken as evil and impurity? Do these harm to them more than the ordinary people? ना तुम्हारा प्रश्न जो है कॉम्प्लिकेट है। प्रश्न ये है कि हमारे मन में यदि इम्प्योर डिजायर उठी, मैंने बुरा काम नहीं भी किया लेकिन मन में अगर बुरी इच्छा उठी तो वो पाप होगा कि नहीं होगा, यही प्रश्न है तुम्हारा? हाँ मतलब ये जो लोग सिंसियर सीकर हैं उसके लिए क्या ज्यादा हानिकारक है ये? हाँ देखो ऐसा है, माँ शारदा ने तो यहाँ तक कहा है कि कलिकाल में मन का पाप नहीं होता है ना जी। लेकिन जो साधक है ना जी, उनके मन में जरा सा भी बुरा विचार आए कि वो लोग समझते हैं कि मैंने बड़ा पाप किया। ऐसा है, यहाँ तो दूसरी बार है कि गृहस्थ में जो है अपने पति के साथ या पत्नी के साथ संबंध में पाप ही नहीं बताया, लेकिन सन्यासी के लिए पाप है। सन्यासी को तो अगर कोई नारी को उसने माँ के रूप में नहीं देखा, दूसरे रूप में देखा तो पाप हो गया।
चिंतन में भी दोष है। जी श्री रामकृष्ण को तो क्या है, देहात्म बोध भी नहीं था। मैं पुरुष हूँ ये भी बहुत नहीं था श्री रामकृष्ण को। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ ये कुछ मालूम ही नहीं था उनको। जब उनको पुरुष का बोध होता था तब मेरे को लगता है कि अरे मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो देखो, श्री रामकृष्ण के लिए पाप का लेवल, सन्यासी के लिए पाप का लेवल, एक गृहस्थ के लिए पाप का लेवल अलग अलग हो गए क्या? नहीं होगा ना। जी। तो याद इसका रखो, मतलब- तुम्हारा प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो जी। सेंटेंस जरा पर ठीक से करके जब भी करो, कई बार मेरे को प्रॉब्लम होती है, उसको जी। अच्छी तरह रीड किया करो। हाँ, जी तो यहाँ पे ये है कि पाप का लेवल इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। एक हायर लेवल पे पहुंच गया है तो वो समाज न्यूज़पेपर जो है सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो दूसरा ऐसा मन हो गया है कि न्यूज़पेपर को देख भी नहीं सकता। न्यूज़पेपर छू लिया तो उसको लगता है कि मैंने आज कितना बड़ा पाप किया। दीज आर वेरियस लेवल्स। जी ठीक है जी। ओके। और थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा है कि ये भी देख लो, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 लेवल होते हैं। जी तो जो उच्च होते हैं उनका जो है मानसिक स्तर पे भी जरा सा भी पाप होगा वो पाप सहन नहीं कर सकते। जी। थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, प्रेयर फॉर द अदर्स इज ऑलवेज एडवाइज्ड, डज दिस प्रेयर हैज द सेम इफेक्ट एज इट इज डन बाय हिम और हरसेल्फ? मतलब कोई समझ रहा है मेरा प्रश्न? हाँ, मेरा समझ में पूरा नहीं आया। अगर मैं हिंदू के लिए प्रार्थना करूं जी और तू अपने लिए प्रार्थना करे, जी 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 दोनों में क्या अंतर है ये बताना चाहते हैं। जी। ऐसा है कि भाई दोनों अच्छे हैं। अब ये कौन सी प्रार्थना अच्छी है, कौन सी प्रार्थना बुरी है? जो आदमी खुद अपने लिए प्रार्थना करे वो डेफिनेटली श्रेष्ठ है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि ठाकुर जो है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, यतीश्वरानंद जी दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। तो उसका बड़े उच्च कोटि के संत अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करें तो वो डेफिनेटली सुपीरियर हो जाती है। ओ जी जी। एक और क्वेश्चन है, scientifically how these prayers work for oneself and prayers for others? No, scientifically means साइकोलॉजिकली। हाँ अगर मैं खुद के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मेरा मन शुद्ध होता है, मेरा मन पवित्र होता है, मैं उदार बनता हूँ। इसमें क्या सोचने की बात है? अच्छा, ठीक है। यानी प्रार्थना से गुडविल, ह्यूमिलिटी, डिवोशन, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये सब चीजें बढ़ेंगी। एक मानसिक स्तर तो मानना पड़ेगा। हम लोग फिजिकल लेवल पे नहीं, मानसिक स्तर पर बहुत अधिक रहते हैं। मेंटल लाइफ इज वेरी वेरी इलॉबरेट। तो प्रार्थना से मेंटल स्तर पर कॉन्स्टेंटली मन अच्छा रहेगा। दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करो, ठाकुर से प्रार्थना करो, ये तो इट इज अ पार्ट ऑफ द थिंकिंग। जी। व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द थिंकिंग, जिस प्रकार से थिंकिंग का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा उसी प्रकार प्रेयर का प्रभाव मन पर पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकली साइंटिफिक है। जी जी, ठीक इसमें है क्या प्रॉब्लम है? जी। प्रणाम महाराज जी, मेरा हो गया खत्म। अच्छा, नाउ अब देवाशीष साहा। यस महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। तुम्हारे तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ महाराज जी, है छोटा मोटा है, अभी तो मैं पूरा सुन लिया है, काफी क्लियर हो गया। आपने बोला जगत का कल्याण, तो एक जगह में कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है। जगत का कल्याण बोले हैं आप, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है, इसीलिए कि जगत का कैसे कल्याण किया? जगत की इतना छोटा है, मैंने इससे डॉग्स टेल इफ यू मेक इट। कहाँ बोला, किसने बोला? अरे इसे याद रखो, जगत का कल्याण हमेशा, जगत का कल्याण नहीं होता है, हमारा ही कल्याण होता है। स्वामी जी ने कहा हु आर यू टू डू गुड टू अदर्स। कोई नहीं होता, हमारा ही, हम अपने आप कल्याण हमारा खुद का करते हैं और कुछ नहीं होता। कैसे कैसे? है?
कैसे करते हैं? हमारा जगत का कल्याण मांग रहा है, इसका मतलब ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, who are you to do the good of others? यस, When you do good of others, you are doing your own good. You are becoming unselfish. अच्छा, अनसेल्फिश होना हमारा कल्याण नहीं हुआ क्या? यस। ठाकुर जी बोलते थे कि जगत का करने वाले कौन हो? मैं यही तो बोल रहा हूँ। हाँ, ठाकुर जी बोलते थे तुम कौन हो जगत का कल्याण करने वाले, फिर भी कहते हैं जगत का कल्याण करो। स्वामी विवेकानंद को लगाया जगत का कल्याण करो। हाँ, क्यों? उससे क्या खुद का ही कल्याण हुआ? तुम शुद्ध हुए, तुम पवित्र हुए, तुम उदार हुए। महाराज जी, हाँ महाराज जी, एक बेसिक क्वेश्चन कि भाई जब जगत इज लाइक ए टेल ऑफ ए डॉग, इफ यू मेक इट स्ट्रेट इट विल बिकम कार्डली वंस अगेन। सो दो चीज में हम जानते हैं कि ऐसा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, ये आदमी बदल नहीं सकता, इसको जितना भी बोलो ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी, तभी भी मैं करते रहता हूँ, तो ये फिर इंसानिटी हो गया। फिर प्रैक्टिकल सेंस में मैं फिर भी ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि देवाशीष को कुछ भी कहो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, वो अगली बार भी उसी प्रकार प्रश्न करेगा, फिर भी मैं उस प्रश्न के उत्तर दूंगा। क्यों? कभी ना कभी मैं ठीक हो रहा हूँ। कुत्ते की पूंछ को सीधा करने में हम खुद सीधे हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, कुत्ते की पूंछ वैसी की वैसी रहती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संसार जो है वो अपनी दिशा से चलेगा, फिर भी उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा अहंकार कम हो जाएगा, मैं उदार बनूंगा, मेरा हृदय जो है वो उदार बनेगा। ये तो फंडामेंटल है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। महाराज जी, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है कि द सेल्फ इज देयर इन ऑल ऑफ अस, द सेम सेल्फ, सेम डिवाइन इज देयर इन ऑल ऑफ अस। सो व्हेन आई एम टेकिंग कल्याण दूसरों का करते हैं तो अपना अपना ही करते हैं, बिकॉज इट इज द सेम सेल्फ। यही तो बोल रहा हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। अच्छा महाराज जी, ठीक है महाराज जी, ये तो मैं समझ आ गया। महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जी एक प्रश्न पूछे, छोटा सा, ये जो सामूहिक प्रेयर होता है तो इससे कोई लाभ नहीं होता है? अरे प्रेयर कैसे भी करो उससे लाभ होता है बाबा। मतलब अपना तो होता है, सबका नहीं होता है। सबका मतलब एक साथ जो करते हैं सामूहिक प्रेयर, वो केवल अपना ही लाभ होता है। दूसरों का क्या, ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है। संसार का कल्याण भी तो होगा, डेफिनेटली होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। अच्छा, लेकिन वह यतीश्वर ने शुरू में भी कहा है ना कि दो चाहे वर्ल्ड वॉर हो रही थी, आर्टिकल में पढ़ा ना, सब लोग जर्मनी वाले अपनी जर्मनी की युद्ध की प्रार्थना कर रहे थे कि सुख हो जाए, अच्छा हो जाए, और इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे, यतीश्वर जी कहते ये क्या है, वो तो कलेक्टिव प्रेयर थी, क्या होता है उससे? यू नो इट कलेक्टिवली हो या ना हो, अपने खुद के लिए तो होता है बाबा, ये ध्यान रखो। महाराज जी मेरा सॉरी क्या आपका? अच्छा महाराज जी मैं पूछूं? वो कुछ है क्या, काम की चीज हो तो पूछो। हाँ है महाराज जी, है महाराज जी। एवरी डे हम प्रे करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता भगवान सुन रहे कि नहीं सुन रहे। whether my prayer is answered or not, I do not know, but I next day do the same thing, third day I do the same thing. That means I am repeating my prayer every day. और माँ का एक जगह कहना है, बंगाली में बोलता है माँ भद्रलोक के कि बार बार बोला दरकार আছে, if a gentleman doesn't need to be told every day. So something like, if once you say that God listens, something like that. But I do not know whether my prayer is been listened by him or it is with every day हम करते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग का जब से इनिशिएशन हुआ है आज कितना दिन, तभी से हमें बोला कि पहले प्रे करो, तो हम तो प्रे करते रहते, तो हमें एवरी डे तो सेम चीज होता है। इसका मतलब आंसर तो हो जाना चाहिए था इतना दिन, मतलब कि सेम चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, नया चीज प्रेयर होना चाहिए। तो कौन सी क्या प्रेयर करते हो? ज्ञान भक्ति वैराग्य
इस प्योरिटी, ये जो बेसिक जो है हम करते। अच्छा, सुनो मेरा प्रश्न को अब मैं करता हूँ। अच्छा, ये ज्ञान भक्ति विवेक हुआ कि नहीं हुआ? भगवान तो दे रहे हैं, आपने लिया ही नहीं। भगवान ने कहा तुमने प्रार्थना कर ली, मैं तो दे रहा हूं, तुम लेते नहीं हो, मैं क्या करूं? हाउ डू यू नो? आप कह रहे हैं भगवान सुनते नहीं है, भगवान कहते हैं कि मैं देता हूं, लेता नहीं है। हाउ डू यू नो कि भगवान नहीं दे रहा है? भगवान तो देने के लिए तैयार है। उपाय कौन लेता है कैसे, ज्ञान भक्ति कैसे विवेक कैसे दे रहा पता है? चले महाराज, कैसे पता चले? नो वन वांट्स इट, नो वन वांट्स इट, कोई नहीं चाहता है। हमको गुरुजी ने बोला है कि प्रार्थना करना है, इसलिए हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन हमको ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, विवेक नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए। ये तो हो गया महाराज जी। गिरीश चंद्र घोष की है ना, गिरीश चंद्र गिरीश चंद्र की केस की कहानी है ना, माँ दर्शन दो, दर्शन दो। तो माँ दर्शन देने आ गई। गिरीश तू पुकार रहा था, मैं दर्शन देने आई हूँ। तो नहीं ना माँ, बाप रे बाप, दर्शन तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तो क्या, अच्छा ठीक है, फिर मैं वरदान दूंगी तेरे को। तो गिरीश चंद्र के सोचने लगे, अरे बाप रे, माँ अगर वरदान भी देगी तो बड़ा मुश्किल है, अगर वरदान होता है तो उसके पीछे बहुत समस्या हो जाती है। करोड़ रुपया देती थी, उसके बारे में समस्या ही समस्या होगी। तो कहते हैं, माँ कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे वरदान भी नहीं चाहिए। तो गिरीश कहते हैं वरदान भी नहीं चाहिए। तो माँ ने कहा कि तो फिर वरदान नहीं, तो मैं आई हूँ तो गलत तो नहीं होगा, तो मेरा आना फालतू नहीं होगा। वरदान नहीं चाहता तो अभी श्राप लो माँ, क्या दूं तेरे, श्राप क्या दूं? तो गिरीश तो भैरव थे ना, वीर भैरव, उन्होंने कहा कि मेरी एक नाटककार के रूप में जो प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके ऊपर आप अपना वज्र डालो। माँ कह के तथास्तु कह के चली गई। तो भाई हम कहते हैं ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते मालूम नहीं, सुनकर देते हैं कि नहीं वो भी नहीं मालूम। कैसे मालूम चले सर महाराज जी? और कैसे? भगवान तो सो रहे हैं, वो कह रहे देखना, अरे प्रार्थना ऐसी करना कि भगवान उठे, व्याकुल होवें। एक हैबिट हो गई, भगवान ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, सुबह सुबह प्रार्थना कर लिया, उससे क्या लेना देना है? केवल मुंह से वर्ड्स बोले हैं। डोंट आस्क दैट क्वेश्चंस, दिस इज नॉट प्रेयर। महाराज, कैन आई ऐड समथिंग? महाराज, यस, मिल तो रहा है और हमें फील भी हो रहा है। इफ वी रियली इंट्रोस्पेक्ट, वी विल फाइंड इन द लास्ट 20 years कितना चेंज हुआ हमें। नाम में तो रुचि आया, सत्संग में अपना एक अट्रैक्शन आया है, ये सब तो पहले नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये उनको बोलो ना, ये बोलो इनको, देवाशीष मारे बाबू को। महाराज जी ये तो हुआ, महाराज जी ये तो हुआ है, लेकिन कभी कभी संकट में पड़ जाते हैं, इन डेंजर में पड़ जाते हैं। तो कभी ऑल प्रेयर्स आर लीडिंग टू गॉड और एवरीथिंग, आई मीन माय एग्जिस्टेंस के लिए जितना एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, सबके लिए ही भगवान का ही प्रेयर जाता है, बिकॉज ही इज ऑल इन ऑल। नाउ कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा प्रेयर सुन नहीं रहे हैं। अरे देखो, भगवान जो है वो ब्लेसिंग से, भगवान की ब्लेसिंग जो है ये इट कम इन द फॉर्म ऑफ कठिनाई। भगवान की ब्लेसिंग्स कठिनाई में आती हैं भाई। यदि आपके जीवन में कठिनाई आ रही हो तो समझ लीजिए भगवान की कृपा है आपके ऊपर। अच्छा, मतलब ये महाराज, ये तो वही है ना, जो भी होता है मंगल के लिए ही होता है। अगर हम लोग ये एक्सेप्ट, हाँ, ये अगर हम आपसे एक्सेप्ट कर ले तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बड़ा बहुत मुश्किल है। अब ये बोलो ना उनको भाई, जी से मिलना। ठीक है महाराज जी। जैसे महाराज रामेर इच्छा, द तांती सेड रामेर इच्छा, जो भी हुआ है, तो इवन ही वेंट टू जेल आल्सो। चेयर नहीं बसुन तो माई विल नाम की कोई चीज ही नहीं है, इट इज ऑल गॉड्स विल। उसमें ये कह सकते हैं ना। यहाँ उसका जवाब मिल गया। हाँ महाराज जी, हाँ, यस, कैन यू हियर मी महाराज जी? कैन यू हियर मी महाराज जी?
Okay, anything else? No, that is done. Now there are very good prayers at the end of this text. Now, if you choose according to your inclination or tendencies and all, and if you keep if you memorize it and do it every day, you will get the benefit of it. I think. I mean, if you get the good feeling of reciting those prayers, you get the benefit, spiritual benefit out of it. I feel when I read it, it's very good. There are at the end some good prayers of Swami Jyotisharanand Maharaj. Then what is your question? Question is that will it help? Of course, ठीक है महाराज जी, समझ गए। ठीक है। हाँ, अच्छा दिलीप भाई जी महाराज, तुम्हारे कुछ और क्वेश्चंस है ना? और कोई है तो नहीं? सबके क्वेश्चंस हो गए? जी हाँ महाराज, दिलीप भाई तुम्हारे क्वेश्चंस लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विच इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर? Is evening prayer is also the same effective as in the early morning hours? दोनों टाइम, ये तो फिक्स टाइम है। ये ध्यान जप के 2 टाइम है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पहले। जी, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के इमीडिएटली बाद में, संध्या के समय और प्रकोष्ठ सुबह के। जी जी महाराज। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये, महाराज इटर्नल कंपेनियन में बोला है कि एनी संधि इज गुड टाइम फॉर प्रेयर, तो उस हिसाब से बोला है दोपहर में भी। नहीं प्लीज ये अभी ये रहने दो, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। यस महाराज, मेरा सेकंड सवाल है, what is the posture in the prayer and what precautions and preparations to be made before sitting for the prayer? ऐसा है कि प्रार्थना जो है ना, वो प्रार्थना के ध्यान के साथ में जुड़ा हुआ होता है। हाँ, मुंह हाथ धो लेना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए प्रार्थना उसको, और मुंह हाथ धो के और ध्यान में जैसे बैठते हैं उसके पहले प्रार्थना करते हैं। तो वो आप पालती मार के बैठोगे, पद्मासन तो नहीं लग सकता इस उम्र में, लेकिन पालती मार के बैठो, गर्दन, पीठ और कमर जो है सीधी होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट। और इस उम्र में क्या है कि घुटने के ऊपर, बल के ऊपर बैठ के प्रार्थना करना भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे है मुसलमान लोग जो घुटने पे हुआ ना, या मंदिर में जब घुटने के ऊपर जो के, वो इस उम्र में हो नहीं पाएगा, घुटनों में दर्द हो। तो वही जितना भी हो, या फिर कुर्सी में बैठो, किसी भी प्रार्थना प्रेयर को किसी भी पोजीशन में बैठो, गर्दन, पीठ, कमर सीधी होना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ सकते हो, बस कुर्सी पे बैठ के कर दो ना आप। इस उम्र में तो हम कुर्सी पे बैठ के ही करते हैं। अच्छा महाराज, ये एम्प्टी स्टमक होना चाहिए क्या? और खाली पेट प्रार्थना होना चाहिए या कुछ लेने के बाद प्रार्थना करना चाहिए? क्या खाली पेट प्रार्थना करना चाहिए या कुछ लेके करना चाहिए? अरे कुछ भी कर, खाली पेट करना अच्छा है। थोड़ा सा चाय ले लिया, जी जी, चाय कॉफी लेना चाहो तो ले लो, थोड़ा सा ले लो, ज्यादा पेट नहीं भरना चाहिए। जी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन is the method of prayer for children, young and a new aspirant persons are the same or different? क्या बोला? Is the method of prayer for आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस इसलिए बोलो। हाँ, is the method of prayer for children, young and new aspirant persons are same or different? इन लोगों की प्रार्थना, बच्चों की, यूथ की और नए जो बच्चों की प्रार्थना और बच्चों की, यूथ की, नए एस्पायरेंट जो नए साधक आए हैं, उनकी प्रार्थना एक सरीखी होगी या अलग अलग हो सकती है सबकी प्रार्थना? अरे भाई, अपनी अपनी प्रार्थना, जो साधक है वो साधक के अनुसार करेगा। हाँ। बच्चे के अनुसार करेगा। नहीं, पर प्रेयर में डिफरेंस नहीं होगा। बच्चा अपने ढंग से करेगा प्रार्थना, साधक अपने ढंग से करेगा। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तुमको? दोनों को मिलाते क्यों हो? नहीं, मेरा मिलाने का अर्थ ये था कि प्रेयर के वर्डिंग्स या जो प्रार्थना रहती है वो अलग होती है, ये प्रार्थना एक ही होगी? हम छोटे बच्चे से प्रार्थना क्या करवाएंगे कि
नहीं, प्रार्थना करो भगवान को, वो तो है ना, जी हे प्रभु आनंद गाता ज्ञान हमको दीजिए, बचपन में स्कूल में, हाँ हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, जी ब्रह्मचारी धर्म रक्षक जीव व्रतधारी वीर व्रतधारी बने। ये बचपन में वो आरती उसका प्रेयर होती थी कि नहीं होती थी? बच्चे इसी प्रकार की प्रेयर करेंगे। राइट, बस ये मेरे सवाल थे। प्रश्न हो गए सब? जी सब हो गए। अब आपके प्रश्न महाराज जी। अच्छा भाई, अब महाराज मैंने जी महाराज जी आशीष अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो। मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे सुबीर मजूमदार जी ने शुरुआत में बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा। मुझे एक प्रश्न ये था, क्या भगवान से ऐहिक प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए? ये आप पे निर्भर करता है। संसार के लोग तो अधिकांश ऐहिक प्रार्थना ही करते हैं। भगवान से जुड़ने का उनका एकमात्र उपाय है ऐहिक संसारी विषय ही है। और संसार से ऐहिक प्रार्थना नहीं करोगे तो वो लोग समझ नहीं आता है कि प्रेम भक्ति क्या होती है, ज्ञान वैराग्य क्या है, उनको समझ में नहीं आता है, चाहते ही नहीं है। तो हम क्या करें उनके लिए? ईसा मसीह की प्रार्थना में तो वो कहते हैं गिव अस माय डेली ब्रेड, ये भी है हमारी रक्षा करना, हमको टेम्पटेशन में मत डालना। ये ईसा मसीह की प्रेयर है फेमस। महाराज जी नियमित जप ध्यान होने के बाद, अधिकांश लोगों के लिए नियमित जप ध्यान होने के बाद, जैसे मंत्र दीक्षा के बाद हमें मंत्र मिलता है, हम जप ध्यान करते हैं, फिर गुरुदेव ने उसमें लिखा है पुस्तिका में कि आपको जप ध्यान होने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, कि वे हम पर कृपा दृष्टि रखना, सब कहा। और उसके साथ यदि हम ऐहिक प्रार्थना भी करते हैं जो हमारे गुरुदेव ने पुस्तक में नहीं लिखी, मेरा एक बहुत बेसिक प्रश्न है, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैं रोज ये करता हूँ और मुझे रोज एक अंदर फीलिंग होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप वो उसको भगवान उन्होंने जो प्रोसेस बताई है उसके अंदर ऐड मत कीजिए। अच्छा, जो भगवान उन्होंने जो नियमित बताया है उसमें ये ऐहिक प्रार्थना ऐड मत कीजिए। अच्छा, ऐहिक प्रार्थना करना हो तो अलग से कीजिए। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव ने जो पुस्तक दी है मंत्र दीक्षा के बाद है वो पूरी हो जाए, हाँ पूरा हो जाए, मंत्र जितना हो जाए, उसके बाद प्रार्थना हो गई, शरणागति हो गई, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो पूरी प्रोसेस हो जावे, उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट बाद में या आधा घंटे बाद में या और किसी टाइम पे एक प्रार्थना कीजिए। अच्छा, वो गुरु जी के इंस्ट्रक्शन से अलग होगा। और महाराज जी जैसे आज का जो प्रार्थना का विषय था उसमें जैसे अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हैं, उसमें एक प्रार्थना है कि हम विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दूसरी है हम ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए प्रार्थना करें, और तीसरी प्रार्थना है हम ऐहिक प्रार्थना करें। तो जैसे मैं यदि आपसे मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसमें सबसे सर्वोच्च प्रार्थना क्या है? जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि may I be born again and again to suffer thousands of miseries to serve the only God that exists in human temple। तो एक प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं रोज कि हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति दो, प्रेम दो। तो इसमें सर्वोच्च प्रार्थना यदि मुझे आपसे प्रश्न करना हो कि इसमें सर्वोच्च प्रार्थना कौन सी? हमने रोज अगर नियमित भगवान से अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए तो कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? जो भूखा हो उसकी सर्वोच्च प्रार्थना हो कि भगवान मेरे को खाना दे। बराबर है। तो वैराग्य चाहिए। जैसा व्यक्ति होगा उसके अनुसार सर्वोच्च भावना होगी। यानी हर एक व्यक्ति के लिए उसकी प्रार्थना है, उसके हिसाब से व्यक्ति तो कभी कुछ नहीं मांगेगा, ये कहेगा कि प्रभु, एक व्यक्ति तो ये भी कहेगा कि प्रभु मेरा जीवन चला जाए लेकिन मेरे जीवन के द्वारा लोगों का कल्याण हो, मुझे नरक में जाना है पसंद करता हूँ लेकिन जगत का कल्याण हो, ये मुझे को दो। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ये आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा तुमको कौन सी अच्छी प्रार्थना अच्छी लगती है। रामानुजम ने जैसे किया था। अशोक अग्रवाल, क्या नाम? आशीष अग्रवाल। हाँ महाराज जी। क्या बात है, तुम्हारी बहुत एब्सेंट लग रही है। हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ। हेलो। हाँ महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए।
अच्छा ठीक है, मेरा क्षमा चौथा प्रश्न और प्रार्थना, अंतिम मैं प्रश्न है क्षमा महाराज। प्रार्थना करता हूँ। है क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रार्थना क्षमा चाहता हूँ, प्रार्थी क्षमा हूँ, प्रार्थना प्रार्थना है करता हूँ। ये आपकी आपकी सर्वोच्च प्रार्थना है क्षमा की। सही बात है महाराज जी। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न मेरा अच्छा, है। अब कुछ नाड़ी टाइम बचा है हमारे पास। एक अंतिम प्रश्न है मेरा बस। हाँ, हेलो। हाँ हाँ महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है मेरा। हाँ नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम हाँ। के ऊपर, नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम के ऊपर एक अंतिम प्रश्न है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यहाँ मत लो, यहाँ पे प्रेयर के साथ नहीं जुड़ना ठीक है जुड़ेगा। महाराज जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैंने प्रश्न पूछे हैं, हाँ महाराज जी, यस। उसमें से क्वेश्चन 1 चंदन कुंडू जवाब दो। इज इट नेसेसरी टू हैव प्रेयर कैन बी नॉट डू विदाउट प्रेयर? Yes, Maharaj, it is necessary because we are imperfect and God is perfect. So, whenever we feel some want and weakness in us, we pray and we get the required amount of confidence. So, in ordinary life also, prayer is very important. And in spiritual life, prayer is essential because that is the means of communion with God. Okay, good. महाराज Second question. हाँ मैं इसमें ऐड ये करना चाहता था कि हाँ। prayer is not necessary and it is necessary both. The persons who believes only eat, drink and be merry, उनके लिए प्रेयर का कोई महत्व है ही नहीं, और जो स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं उसी के लिए ये प्रेयर जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड, जी ठीक है। Second question. यस। Can there be any prayer without desire? रीता Maharaj? विश्वाल। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया महाराज जी। नहीं, Can there be any prayer without desire? तो सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, कैन वी डू विदाउट प्रेयर्स, ये क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। क्या था? सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन था इज इट नेसेसरी टू हैव प्रेयर्स, सेकंड क्वेश्चन था कैन वी डू विदाउट प्रेयर्स, थर्ड क्वेश्चन था कैन देयर बी ए प्रेयर विदाउट डिजायर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, यू हैव स्किप्ड वन क्वेश्चन। Okay, okay, हाँ। Can there be any prayer without desire? रीता विश्वाल। रीता विश्वाल is there? Yes, Pranam Swamiji, yes. हाँ, बोलो। Question 2. Question 3. Can there be prayers without God? Can there be secular Without prayers? desire. Without desires is question 2. Anyway, whatever it is. Yes. Yes. That yes. Answer. For normally for the general mankind, prayers are always with desires, lower or higher, material or spiritual. It is always even a spiritual desire is a desire that, oh Lord, help me, guide me. That itself is a prayer. One example, one or two examples are there. Thakur himself used to tell mother that, oh mother, let my please always give me, keep me at your lotus feet, and let me always have devotion to thee. Prahlad, Shukadev, even Kunti's prayer for devotion, that is a higher order of devotion. But otherwise, lower people will these are some examples I have given you. Okay. ठीक है। That's Now, okay. third question. महाराज जी इसका Okay, रिप्लाई okay. चाहिए जी। इसमें एक मिनट। Is God necessary for prayer? Can there be secular prayers? Yes. Yes, Maharaj ji. Shivani. Can there be secular prayer? Yes. The being. Shivani. Shivani.
जी महाराज, हाँ, जी महाराज, there can be. ओके, एग्जाम्पल। Maharaj, example I won't be able to give. सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। Universal prayers. In like, Jainism and Buddhism. in universal prayers, like ठीक, good wishes for everyone, अच्छा, ओके। positive vibrations for everyone. Fourth question. What is the psychological advantage of prayer? Vibha Chaurasia. Vibha Chaurasia. Vibha Abha. यस स्वामी जी, यस स्वामी जी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। वी फील दैट ठाकुर इज देयर फॉर अस, इज ऑलवेज ठाकुर और गॉड इज देयर फॉर अस, और वो हमारा एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आती है, सहारा लगता है, एक सहारा होता है हमारे मन को। और माँ है, माँ देखेंगी। भक्त के लिए तो ऐसा होता है, ज्ञानी के लिए वो विश्व से एकात्म होता है, तो उसको सर्वत्र अगर ब्रह्म की अनुभूति अगर थोड़ी भी हो, कभी हो जाए, तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक मतलब वो दूर होता है अपने दुखों से। ये चीज दुखों से दूर होता है, एक मतलब सब कुछ सब में वही होता है, तो मन बहुत ऊपर उठ जाता है, तो संसार तुच्छ लगने लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, नाउ fifth question. What was Sri Ramakrishna's prayer? कौन बताएगा? महाराज मैं बताऊं महाराज जी? हाँ बताओ। ये 11 मार्च 1885 में उन्होंने सिखाया था। हाँ, वही। O mother, I throw myself on thy mercy. I take shelter at thy hallowed feet. हाँ महाराज जी। मैं उसको हिंदी बोलूं? हाँ महाराज जी। हाँ महाराज जी। हिंदी बोलूं बंगाली इंग्लिश? हिंदी विल बी बेटर ना? जी महाराज। माँ मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ, तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ली है। माँ मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अनिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता, केवल यह करता हूँ कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, निष्काम अमला अहेतु की भक्ति। और माँ तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्न न हूँ, तुम्हारे माया के संसार के कामिनी कांचन पर कभी प्यार न हो। मैं तुम्हारे सिवा माँ तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, कृपा करके अपने श्री पाद पद्मों में मुझे भक्ति दो। ठीक है? यस महाराज जी, यस। अच्छा, अब कोई बता सकेगा जीसस क्राइस्ट की प्रेयर? महाराज जी मैं बोलूं? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। जी नो नहीं मैं बोलूं स्वामी जी? नहीं, ये बोलो तो एक्चुअली है क्या? बाइबल है किसी के पास? मेरे पास है। Our Lord's prayer. पढ़ो। Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Okay, very good. महाराज जी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है, जो वे ऑफ द पिलग्रिम में उन्होंने प्रेयर बताया है, वो तो यही है ना, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। यस, ए सिनर, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी एंड सिनर। ये सेंट फ्रांसिस उसमें ब्रदर वो उसमें
वे ऑफ ए पिलग्रिम में है। जी महाराज। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की थी, ओ ये है O Lord, give me this day to serve thee better and to love thee more. Let me not look forward. तो माने ये तो नहीं है, नहीं दूसरी है, वो क्या है जिन सेंट फ्रांसिस की एससीसी की है, grant that I may not so much seek to be understood as to understand, Yes, as to be loved as to love, love. to be consoled as to console. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. ये है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। सो महाराज जी मैथ्यू में एक है 21-22, all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Okay. Hey, alumni parlor So दिखाओ। shall we stop now? Okay. Yes, Maharaj. Also, Shall we stop now? Okay. हाँ, दिलीप yes, भाई, Maharaj. महाराज जी हाँ आशीष बोल रहा हूँ महाराज जी। हाँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा महाराज जी। इसके पहले की भी अच्छे थे, लेकिन आज का बहुत अच्छा लगा ये रिवर्स क्वेश्चनिंग की वजह से। बिकॉज तुम आए ना, तुमने ज्वाइन किया इसलिए बहुत अच्छा लगा। नहीं, उसका कारण ये है जो सवाल आप अच्छा पूछ रहे हैं भाई। उससे सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ और आता है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना उससे सब्जेक्ट ठीक है, देखा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होते हैं उससे। ओके ओके, हमें तैयारी करना नमस्ते पड़ता नमस्ते। तैयारी करना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वेरी